Welcome back, everyone. So, we will cover this article Notices to Actors. What law says on surrogate ads? Okay. Let's read together. Maharashtra's Food and Drug Administration is issued so-called notices to Bollywood actor Shah Rukh Khan alleging that their advertisement for Vimal Ilaichi amounts to surrogate advertising for Vimal Pan Masala. Okay. So this is something else. I thought surrogacy. No, that's not the case. कुछ अलग है. Let's read it. The notices ask the three actors to explain their role in the ad, which is in the FDA's assessment, creates an association with the Vimal Pan Masala brand, a product currently prohibited in the state, okay, and could amount to its indirect promotion. The latest action reportedly marks the first instance of the regulator examining surrogate advertising even as it ramps up its crackdown on gutka and pan masala containing tobacco or nicotine. Okay. First of all, we'll search कि ये surrogate advertising क्या है. A new keyword for us. Surrogate advertising. Surrogate advertising is a technique in which a company indirectly advertises a product that cannot legally be advertised. Okay. So something surrogacy जैसा ही हुआ ना कि if you like कोई और आपका बेबी को पाल मतलब क्या बोलते हैं उसको बेबी को वोम में रख रहा है ना by promoting another product with the same brand name logo और identity. अच्छा मतलब जैसे अगर विमल पैन मसाला का प्रोडक्ट है उसको एडवर्टाइज करना है सो कंपनी क्या करेगी विमल पैन मसाला कंपनी क्या करेगी कि वो उसको इनडायरेक्टली एडवर्टाइज करेगी कोई और अनदर प्रोडक्ट को प्रमोट करके जिसका नाम लोगो आइडेंटिटी उसके जैसा हो समझ में आया मतलब विमन पैन मसाला जो कंपनी है जिसपे जो केस हुआ है सरोगेट एडवर्टाइजिंग का मतलब कि देखो in India, direct advertising certain products restricted or prohibited such as cigarettes, tobacco products, alcoholic beverages, etc. To keep their brand visible, companies advertise a different product under the same brand name. Okay, suppose a liquor brand called Kingfisher cannot advertise beer directly. Instead, it advertises Kingfisher soda. Okay, packaged drinking water. Okay. The government and regulators generally discourage surrogate advertising because it can defeat the purpose of restrictions on tobacco and alcohol promotion. Relevant regulation include cable television networks ये एक्ट के अंदर है advertising standards issued by the Advertising Standard Council of India advertising standard okay rules under tobacco control laws ठीक है authorities may take action if an advertisement is found to be disguised promotion ठीक है घूंघट में छुप के अगर disguise is something like कि आप openly promote नहीं कर रहे हो but you are promoting in a disguised manner disguise का मतलब है कि छुप के या फिर ओपनली डायरेक्टली नहीं करना कुछ ठीक है सो या ये है ओके मैं तो जब पहले पढ़ा ना तो मुझे लगा कि सरोगेसी पे कुछ होगा लेकिन ओके वी गॉट टू नो सम गुड न्यू थिंग ठीक है व्हाट द नोटिसेस से Maharashtra has prohibited gutka and pan masala containing a tobacco or nicotine since 2012. Okay, under Section 30, Clause 2, Clause A of the Food Safety and Standards Act 2006. इसके अंडर उसको ऑलरेडी प्रोहिबिट कर चुके हैं महाराष्ट्र वाले फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंदर द प्रोहिबिशन इज रिन्यूड एनुअली ओके विद द करंट रिन्यूअल इन फोर्स सिंस जुलाई से करंट रिन्यूअल चल रहा है मतलब हर साल रिन्यू होता है ये प्रोहिबिशन अकॉर्डिंग टू द एफडीए क्या है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने बोला है द विमल एलाइचीज एड्स presentation, dialogue, product name, and market context
raise a serious question over whether it constitutes indirect or surrogate promotion of a prohibited tobacco related product. हाँ, क्योंकि वो लोग पता है प्रमोट कैसे करते हैं, विमल इलायची. सो वो ओपनली प्रमोट, लाइक इट कंटेन्स टबेको, राइट, निकोटीन वगैरह जो भी, लेकिन वो प्रमोट कैसे करते हैं, विमल इलायची करके. सो मे बी उससे रिलेटेड हो. द okay, I don't have to highlight this also. The regulator said, given all the three actors appear as brand endorsers, their direct participation is liable to be examined under various provisions of the Food Safety and Standards Act 2006. What the law says. The Central Consumer Protection Authority, CCPA, has notified the guidelines for prevention of misleading advertisements and endorsement for misleading advertisements in 2022. Guidelines already issue हो चुके थे. The guidelines define, उन्होंने guidelines में surrogate advertisement को क्या define किया? This we have to remember. As an advertisement of goods, product or service whose advertising is otherwise prohibited or restricted by law. ठीक है, बाय लॉ. ये जो विमन पान मसाला नहीं, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, लेकिन टबेको रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है, ठीक है, वो रिस्ट्रिक्टेड है. टबेको, ऐसा कोई भी गुटखा या पान मसाला जिसमें टबेको और निकोटिन हो, वो महाराष्ट्र में सिंस 2012 इट हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड. लेकिन सरोगेट एडवर्टाइजमेंट क्या करते हैं, वो उसी चीज का एडवर्टाइजमेंट करते हैं जो बाय लॉ रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन वो कोई और प्रोडक्ट उसका सेम नेम, लोगो वगैरह सेम रख के वो एडवर्टाइज करते हैं. सो बाय सर्कमवेंटिंग सच प्रोहिबिशन, ठीक है, मतलब उसको ओवरकम करते हैं वो प्रोहिबिशन को और रिस्ट्रिक्शन, एंड पोर्ट्रेइंग इट टू बी एन एडवर्टाइजमेंट फॉर अदर गुड्स, प्रोडक्ट और सर्विस. मतलब दिखा वो ऐसा रहे कि हम तो विमल इलायची का वो कर रहे हैं वो, लेकिन असलियत में तो प्रोडक्ट तो उसमें है ना, टबेको वगैरह. The advertising of which is not prohibited or restricted by law. हाँ, विमल इलायची is not restricted under law, लेकिन गुटखा और पान मसाला जिसमें टबेको और निकोटीन है वो प्रोहिबिटेड है. सो वो लोग वो ना प्रमोट करके ये प्रमोट कर रहे हैं विमल इलायची. सो that amounts to surrogate advertisement. Penalties for violations are clearly outlined, already outlined हो चुका, किया गया है. CCPA क्या है? CCPA Central Consumer Protection Authority can impose a penalty of up to rupees 10 lakh on manufacturers, advertisers and endorsers for any misleading advertisements. For subsequent contraventions, याद रखेंगे वाला, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA क्या बोला इसमें, हाँ, may impose a penalty of up to 50 lakh. Okay. CCPA can prohibit the endorser of a misleading advertisement from making any endorsement for up to 1 year and up to 3 years for subsequent contravention. मतलब उसको तो वो पेनल्टी भी इम्पोज कर सकते हैं 50 लाख तक CCPA, और उसको जो एंडोर्सर्स है, जो एडवर्टाइजमेंट, मतलब कि ये जो भी एक्टर्स एंडोर्सर्स थे, राइट, वो तो उनको भी वो प्रोहिबिट कर सकती है कोई भी ऐसे एंडोर्समेंट करने से 1 ईयर या 3 साल तक. द क्रैकडाउन. द FDA, Food and Drug Administration, stepped up enforcement across a range of food safety concerns, from adulterated milk and food served at restaurants to the sale of junk food in and around schools and the manufacture and sale of banned gutka and tobacco containing pan masala. इतना सब कुछ वो already इस पे वो enforcement करवा रहे हैं, ठीक है. Between May 25 and July 31st, the Food and Drug Administration raided 658 establishments where banned products were found. They seized stock worth rupees 15.11 crore, registered 519 FIRs and made 701 arrests. It also seized 78 vehicles carrying banned goods worth rupees 6.6 crore. So ये है, अभी इसमें कुछ पास का स्क्रूटिनी भी है. Let's look into that. In 2018, the Directorate General of Health Services issued so cause notices to Vimal Ilaichi's promoter. Already issue किया था notice. Vishnu Pouch Packaging Private Limited, alleging indirect advertising of tobacco products. ठीक है, इसको विमल इलायची के प्रमोटर जो है उन्होंने ऑलरेडी नोटिस दिया था.
द कंपनी चैलेंज द नोटिस, और कंपनी ने उस नोटिस को चैलेंज किया था कोर्ट में. जनवरी 2024 में द दिल्ली हाई कोर्ट डिसमिस्ड, इसका अपील डिसमिस कर दिया, saying that the company had a fundamental right to carry on business of pan masalas and tobacco so long as it has constitutional sanction. दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बोल दिया कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन है तो उनके पास दे हैव द राइट टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ दिस पान मसाला एंड ऑल ऑफ दैट. तो ये पास का स्क्रूटिनी था, लेकिन अब ये स्क्रूटिनी हो चुका है ख़त्म. अभी सरोगेट एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते आप. सो अभी लेट्स क्विकली लुक इनटू द रोल ऑफ इनका वो देखते हैं डोमेन एफडीए का. ठीक है. Then this act ओके. फिर है CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी. और क्या था, ठीक है, और है ये भी देख लेते हैं इसका. ठीक है, और कुछ रह गया नहीं. ओके. एक्सप्लेन इट टू मी अबाउट देयर jurisdiction और पावर्स. ठीक है. ओके. फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है पहले तो. इन इंडिया दैट इज नो सिंगल नेशनल FDA लाइक US FDA. ओके. मतलब हर एक स्टेट्स के खुद के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, जैसे महाराष्ट्र का FDA, गुजरात का ऐसा. तो एक सिंगल नेशनल FDA नहीं है हमारे पास, जैसे US में है. हमारे पास स्टेट्स वाइज है FDA पावर्स. उनके पास क्या क्या पावर है, वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और फार्मेसीज को भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली. कलेक्ट सैंपल्स फॉर टेस्टिंग, तो इंस्पेक्ट करके तो कलेक्ट ही करेंगे ना, क्यों ही इंस्पेक्ट कर रहे फिर. सस्पेंड और कैंसिल लाइसेंसेस उनके पास पावर है. सीज एडल्ट्रेटेड फूड और स्प्यूरियस ड्रग्स, वो सीज भी कर सकते हैं. स्टेट लेवल पे होता है जुरिस्डिक्शन. और ठीक है. फिर FSSS एक्ट, उनका ये दिस इज द मेन लॉ गवर्निंग फूड सेफ्टी इन इंडिया. पूरे इंडिया में जो फूड सेफ्टी से लगता है एक्ट है वो FSSS है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006. उसी ने ये एक्ट से ही, मतलब ये FSSAI स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ क्योंकि वो एक्ट से बना है. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्रिएट हुआ है. पावर्स अंडर द एक्ट, फूड स्टैंडर्ड्स को सेट करना, रेगुलेट करना, मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और फूड का इम्पोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज और मैन्युफैक्चर को रेगुलेट करना, फूड लाइसेंस को इशू करना. और ये क्या करता है FDA, वो कैंसिल कर सकते हैं लाइसेंसेस को. इशू कौन करेगा, FS लाइक अंडर दिस एक्ट इशू होगा. तो इशू कौन करेगा वो भी सर्च करेंगे. ले डाउन लेबलिंग एंड पैकेजिंग नॉर्म्स. ठीक है. और जो भी अनसेफ फूड है उसका रिकॉल करना. इफ अ कंपनी सेल्स एडल्टरेटेड मिल्क और फॉल्सली लेबल्स अ फूड प्रोडक्ट एज ऑर्गेनिक, एक्शन कैन बी टेकन अंडर द FSS एक्ट. FSS वो एक लॉ है और FSSAI रेगुलेटर है. तो मतलब FSSAI फूड लाइसेंस को इशू करेगा. अभी CCPA क्या है, वो इस एक्ट के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था, मतलब ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स ऑब्वियसली, और वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स. इन्वेस्टिगेट करेगा कंज्यूमर राइट वायलेशन, ऑर्डर रिकॉल ऑफ डेंजरस गुड, ऑर्डर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस, इम्पोज पेनल्टीज भी इम्पोज यही करेंगे. CCPA पेनल्टीज इम्पोज करेंगे मैन्युफैक्चर पे, एडवर्टाइजर, एंडोर्सर. और जो भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है उसके अगेंस्ट एक्ट कौन करेगा, CCPA ही करेगा. जुरिस्डिक्शन है ऑल द सेक्टर्स, सिर्फ फूड ही नहीं है, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, सो उसका स्कोप बड़ा है. कंज्यूमर राइट्स का वॉचडॉग है. और डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ये एक टेक्निकल बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. उसके फंक्शंस है सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना ऑन पब्लिक हेल्थ मैटर्स, डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम्स कोऑर्डिनेट करना, टेक्निकल गाइडेंस देना ड्यूरिंग हेल्थ इमरजेंसीज, और कुछ नेशनल मेडिकल और हेल्थ इंस्टीट्यूशन को ओवरसी करना. मोस्टली इनके पावर एडवाइजरी, टेक्निकल और कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है. कोई एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं है ये,
DGHS, ओके। और नेशनल लेवल पे पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। सो यस, सो FDA जो है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वो फूड एंड ड्रग लॉज को एनफोर्स करवाते हैं। FSS एक्ट नहीं, FSS एक्ट नहीं होगा ये इन्फोर्स करवाते हैं जो भी जितने भी लॉज है वो सारे, इनका इंस्पेक्शन करेंगे, सीजर, लाइसेंसिंग। FSSAI जो है बॉडी, वो रेगुलेट करेंगे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड सेट करेंगे, लाइसेंसिंग वगैरह फूड रेगुलेशन भी वही करेंगे। CCPA कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करेंगे, पेनल्टीज इम्पोज करेंगे, रिकॉल करेंगे एक्शन, और अगेंस्ट मिसलीडिंग एड्स। और ये तो सिर्फ एडवाइजरी बॉडी है DGHS, वो टेक्निकल एडवाइस और कोऑर्डिनेशन, उसका कोई एनफोर्समेंट का काम नहीं है। So this was it for this video. Thank you for watching this. Keep learning.